اب میں بلا تاخیر، جن کا آپ کو بھی انتظار تھا، مجھے بھی انتظار تھا، مجھے بھی بڑا شوق تھا اور آپ بھی حضرت صاحب کے شوق کے انتظار میں تھے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میری مراد عظیم نکتہ دان حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بڑے مخصوص انداز کے اندر گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز نال نعرہ تکبیر، مقام صحابہ، استحکام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ نارنگ کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، دنیا کے سب سے پہلے مرد کو اللہ نے جس روپ میں بنایا وہ شوہر تھا، اور سب سے پہلی عورت کو جو کردار، جو رشتہ عطا فرمایا اور جس رشتے میں پرویا وہ بیوی تھی، اور دونوں کو جس جگہ رکھا وہ جنت۔ دنیا کی جنت وہی ہے جہاں شوہر کے ساتھ بیوی موجود ہے۔ اگر الگ الگ رہ رہے ہیں، دنیا جہان کے لاکھوں مزے ہو سکتے ہیں، سہولتیں ہو سکتی ہیں، مگر ان میں وہ جنت نما سکون نہیں ہو سکتا۔ محبوب علیہ السلام کے 3 صحابی دین کے لیے وقف ہونے آئے، اور ایک نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمیشہ قیام کروں گا، آرام نہیں، صرف نمازیں۔ دوسرا بولا کہ روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، کوئی چھٹی نہیں۔ اور تیسرے نے اعلان کیا تھا کہ میں گھر بار کے چکر میں نہیں پڑنے والا، بیوی بچوں کے معاملے میں نہیں، بلکہ پوری زندگی کا ہر پل، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ میں خود کو دین کے لیے وقف کرنے والا ہوں۔ تو میرے محبوب نے فوری منبر لگوا کے سرخ آنکھوں کے ساتھ، شدید غصے کے ساتھ یہ جملے کہے تھے کہ لوگو، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، قیام بھی کروں، آرام بھی کروں، روزے بھی رکھوں، وقفے بھی کروں، اور یہ میرے گھر ہیں، یہ میرے حجرے ہیں، یہ میری بیویاں ہیں، میں نے شادی کر رکھی ہے۔ احباب ذی وقار پتہ یہ چلا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ نہیں کہ بیوی بچوں سے دور نکل کے، شہری آبادیوں کو ختم کر کے، گھر بار کو سلام کہہ کے، دین کے نام پہ بندہ جنگلوں میں، بنوں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے اندر کہیں جزیروں میں گم ہو کے اپنے رب کو تلاش کرے۔ نہیں، دنیا میں اگر کوئی چیز جنت نما ہو سکتی ہے تو انسان کا وہ گھر ہے جہاں اس کے بیوی بچے ہیں، اور ان میں رہ کے دین اور دنیا کو، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اصل کامیابی ہے، اور اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے کہ گھر بننے کے بعد
टूट क्यों जाते हैं और बनाने वाले इनको तोड़ क्यों देते हैं? सबसे पहले ये जुमले जहन में रखिए कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है, मत समझिए कि वो एटम की है, वो असले की है, वो रुपए की है, वो पैसे की है, वो मईशत की है या माश की है, अमारत की है या गुर्बत की नहीं। दुनिया के 249 मुल्कों के 3064 जुबानों के परिचर, दाई और मुबल्लिग दिन रात जिस पे काम कर रहे हैं वो यही है कि मुसलमानों का खानदानी निजाम मिटा दिया जाए, मुसलमानों का खानदानी निजाम मिटा दिया जाए। जो साथी ऑपरेट कर रहे हैं साउंड सिस्टम को, ये रिपीटर ख़त्म कर दें, सादी आवाज़ ठीक है, अल्लाह जज़ा दे। हज़रात ज़ी वक़ार, इस वक़्त किसी भी मुल्क में चले जाएं, मुसलमानों के किसी शहर में चले जाएं, आपकी ये कॉन्फ्रेंस साल के बाद होती है, आपका कोई महाना दर्स हो सकता है, लेकिन अगर किसी जगह 24 घंटों में हर घर के अंदर हर पल अगर कोई दावत जारी है, तो जिसे हम टीवी लॉन्च कहते हैं उसके नाम पे, केबल से, डिश के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए आपके और मेरे मौजूदगी में और अदम मौजूदगी में उनके परिचर हमारे बच्चों तक पहुंच के उनकी जो जहन साजी करते हैं, जो उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। औलादें हमारी, पैसा हमारा, दौलत हमारी, घर हमारा, छत हमारी और उसका किराया हम दें, प्रॉपर्टी हमारी, सब कुछ हमारा, मुल्क हमारा, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के घरों के अंदर शायद महल्ले की मस्जिद का मौलवी और खतीब जिंदगी में कभी दाखिल ना हुआ हो, लेकिन दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब के परिचर मुख्तलिफ शक्लों में, कोई गुलूकार बन के, कोई अदाकार बन के, कोई फनकार बन के, कोई किसी नाम पे, कोई किसी नाम पे, कोई सुपर स्टार बन के, कोई हीरो और हीरोइन बन के हमारे घरों में 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के नॉन स्टॉप अपनी दावत दे रहे हैं और हमारे बच्चों को ब्रेन वॉशिंग करके अपना बना रहे हैं। देखने में वल्दियत हमारी है, लेकिन वो बाप की बात मानने की बजाय उनकी जुबान बोलता है। हजरात, ये कोई छोटी बात नहीं। और फिर आप फिल्मों के मौजूआत देखें, ड्रामों के मौजूआत पढ़ें, आप खबरों को देखें, आप कार्टून्स देखें, आप गेम्स देखें, जितने भी चैनल जो जो कर रहे हैं उसके पीछे एक ही चीज है कि इनका खानदानी ताल्लुक और मजबूती खत्म कर दी जाए। और हजरात, वो काफी हद तक इसमें कामयाब है। वो खुद तो तबाह हुए थे। आपको पता है यूरोप में पैदा होने वाली एक बच्ची या बच्चा, उसे पैदा होते हुए बाप की शफकत मुयस्सर नहीं होती। हॉस्पिटल के अंदर उस खुशी से बाहर कोई निगरानी करने वाला, पे करने वाला नहीं होता जिसे बाप कहते हैं। और जब नाम लिखा जाता है तो वल्दियत में बाप का खाना नहीं होता। जब वो थोड़ी होश संभालती है, स्कूल जाने लगती है, तो साथ बाप नहीं होता। स्कूल में बाप का नाम पता ही नहीं होता। पढ़ते पढ़ते जितने सर्टिफिकेट्स, जितनी डिग्रियां ले, बिचारी एंड के ऊपर जाके जब जवान होती है तो तब भी पता नहीं होता बाप है। और माँ उतनी देर में हालात से तंग आकर के जिसको अपना चुकी होती है वो बाप नहीं होता, उसके साथ रहती है तो तब भी परेशानी। कहीं नई जगह पे जाए, किसी दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बना के रहे तो तब भी इज्जत की नीलामी। अल्लाह का शुक्र करें हमारे हालात जितने भी ख़राब हैं फिर भी रिश्तों की कदर है, रिश्तों की पहचान है, रिश्तों का एक नाम है। और हजरात, ये सब किस वजह से मुमकिन है? ये निकाह की बरकत है, ये शादी की बरकत है। और जिनको हम घर समझते हैं, ये सेंट्रल जेल समझते हैं, ये उसी जगह की बरकत है कि आज हमारे सब रिश्तों के नाम है। ये अब्बू जान है, ये अब्बू के अब्बू दादा अब्बू हैं, ये अम्मी जान है, ये अम्मी के अब्बू हैं, नाना जान है, ये मेरे जो हैं साले हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरी नंद है, ये भाभी है, ये चचा जान है, ये ताया जान है। एक औरत जब मेरे मुल्क में पैदा होती है तो 60 रिश्तों को बैक वक्त निभा रही होती है।
میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر کریں آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے کہ گھر گھر کی کہانی وہی ہو، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ اپنے محدود وقت میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے جو بربادی ہے اسے دیکھیں۔ دشمن ہماری عدم موجودگی میں ہماری بیویوں کو جو کچھ پڑھا جاتا ہے اور اس کا ہم بعد میں بل دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، اور شوہروں کو بیویوں کی عدم موجودگی میں جو کچھ سکھا جاتا ہے وہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دشمن کو خوش مت ہونے دیں، اس کو ناکام کریں، تانے دینے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، میڈیا خراب ہے، ڈرامے خراب ہیں، فلمیں خراب ہیں، بیوی خراب ہے، شوہر خراب ہے، بہن خراب ہے، بھابھی کی وجہ سے گھر نہیں بسا، دیورانی یا جٹھانی نے نہیں بسنے دیا، ساس یا سسر نے تباہ کر دیا ہے، اس نے یا اس نے گوا دیا ہے، میں تو رہ سکتا تھا، میری فلاں رشتہ دار نے جو ہے مجھے اجاڑ دیا ہے، اس نے تویز کر دیا، اس نے جادو، اس نے ٹونا کروا دیا، اس نے جو ہے وہ آسیب چھوڑ دیے، اس نے جنات کروا دیے، اس نے یہ اس نے وہ کروا دیا۔ لوگوں انہوں نے تو کچھ کیا تھا، کچھ ہم نے بھی کیا ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے جو اپنی غلطیاں کر کے گھر توڑے ہیں، ان میں میرے محبوب کی نگرانی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف جہاں کمی بیشی ہے اور جو اس کا حل ہے وہ دونوں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ خطبہ نکاح میں سے مجھے صرف 3 چیزیں اس وقت اٹھانی ہیں۔ میرے محبوب جب خطبہ دیتے تھے، یہ خطبہ عمرے میں بھی تھا، یہ خطبہ حج میں بھی تھا، یہ خطبہ جمعے میں بھی تھا، یہ خطبہ عید الفطر میں بھی تھا، یہ خطبہ عید الاضحیٰ میں بھی تھا، یہ دنیا کی کسی ضرورت کے وقت میرے محبوب گفتگو کرتے تو اپنی قوم کی تربیت فرماتے، اور یہ خطبہ نکاح میں بھی تھا، اور پہلا جملہ یہ تھا ان الحمد للہ نحمدہ۔ لوگوں اچھی طرح سن لو، 2 گھر آئے ہیں، 2 برادریاں آئی ہیں، 2 پارٹیاں ملی ہیں، 2 لوگ ملے ہیں، 2 خاندانوں کا ملاپ ہونے جا رہا ہے، نیا جوڑا نیا یونٹ بنائے گا، نیا گھر بننے جا رہا ہے، اور بننے کا سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف ہوا ہے۔ تعارف کیا ہوتا ہے؟ بڑے دور کے لوگ ہوتے ہیں، جان پہچان ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت تونسا سے بھی آگے بیٹھے ہیں اعجاز بزدار صاحب، میرا ان کا تعارف کیسے ہوا کہ ہم ملے؟ یہ رانا نعمان صاحب ہیں، کیسے ملے؟ آپس میں بیٹھے، تعارف ہوا، یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ حضرات ایک مسجد میں نماز پڑھنے لگے، ایک شخص کراچی سے آیا ہے، دوسرا کاشمیر سے ہے، ایک جگہ نماز پڑھی ہے، ایک دوسرے کو دیکھا، ادائیں اچھے لگی، لب و لہجہ اچھا لگا، تعارف ہوا۔ حاجی صاحب آپ کون؟ میں یہ۔ آپ کون؟ میں یہ۔ آپ کے کتنے بچے؟ ماشاءاللہ اتنے۔ آپ کے؟ میرے اتنے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ تعارف ایستا ایستا تعریف میں بدلتا ہے۔ لوگ گھر جا کے بتاتے ہیں آج ایک آدمی سے ملا ہوں، حاجی صاحب اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں، چودھری ہے، خاندانی ہے، بچے ہیں، بڑی اچھی تربیت ہے، ویل سیٹلڈ ہیں، ماشاءاللہ بڑا زبردست بینک بیلنس ہے، الیک سلیک ہے۔ اور دوسری طرف پھر ان کا جو تعارف ہوتا ہے وہ جا کر کے اپنے گھر بتاتے ہیں کہ آج ایک حاجی صاحب سے ملا ہوں، ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، ساری پڑھی لکھی ہیں، قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، کسی نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اس نے فاضل القرآن کی کلاسیں سیکھ لی ہیں، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ تعارف جو تعریف میں بدلا تھا یہ پیار اور محبت میں بدلتا ہے کہ ایک دوجے نال اپا میل نہ لئیے۔ یہ تعارف تعریف میں بدلا اور تعریف نے 2 اجنبیوں کو ایک کر دیا، اپنا بنا دیا۔ یہ ہے ملاپ کا سبب۔ دونوں دور رہنے والے آپس میں دیکھنا ہوا، منگنی ہوئی، نکاح ہو گیا۔ محبوب فرماتے ہیں ان الحمد للہ
जो दो दूर के लोगों को आपस में जोड़ सकती है चीज, वो तारीफ होती है, अच्छा तारुफ होता है। हम अपने रब की तारीफ करते हैं कि जिसने दूर वालों को करीब कर दिया, अजनबियों को अपना बना दिया, जो बेगाने थे उनमें मोहब्बतें डाल दी और उनके दिल के रिश्ते मिला दिए। इसने अपनी इज्जत और अपना जो है वो मारम बना लिया, इसने अपनी इज्जत उसके हवाले कर दी, औरों के बेटे को अपना बेटा बना लिया और अपनी बेटी लख्ते जिगर उठा के उनके हवाले कर दी। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, इस बात पे भी हम अपने रब की तारीफ करते हैं। और सबक क्या मिला कि अगर अपने रिश्तों को निभाना है तो जिन जुबानों से तारीफ कर करके गैरों को अपना बना लिया था ना, शादी के बाद तारुफ खराब ना करना। अक्सर यही होता है कि जो लोग पहले तारीफें करते हैं, बहनें भाई को कह रही होती हैं, भाई रिश्ता वेख्या तेरे तो माशाल्लाह 14 तबक रोशन हो जाना है, तेरी तो जिंदगी संवर गई, उच्चा लम्मा कद, माशाल्लाह सोहनी मटियार, एडे एडे लम्बे वाल, पूरा हुस्न बयान होता है, बड़ी सुगड़, बड़ी सलीका शियार, माशाल्लाह पूरी शेफ, खाने जबरदस्त बनाती है, ये करती है वो करती है, सिलाई कढ़ाई, अदब आदाब, बोलने का सलीका, चलने के अंदाज अतवार, माशाल्लाह पूरा खानदान राम हो जाता है। भाभी तो साड़ी होनी है, लोग भी मुश्ताक होते हैं। माशाल्लाह अभी वलीमा नहीं हुआ होता और पहली रात ही मसले मसाइल हम खड़े कर लेते हैं, इधर का तारुफ उधर, उधर का तारुफ इधर। इधर अम्मा अपने बेटे को कहती, पुत शादी वाला घर है, ਐਵੇਂ जेवर अगे पिछे हो जाएगा, तो जेड़ा आया ना तो मैनू ला के फड़ा दी, सवेरे ले लिया जी। अब माशाल्लाह बेटा भी ताज़ा ताज़ा माहौल होता है, अभी पहले कभी देखा नहीं, माँ बहनों के ऊपर पूरा एतमाद होता है, वीरा बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहनें बड़ी लाजवाब होती हैं, अम्मा जैसा अजीम कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा अच्छी, अब्बा अच्छे, सारे अच्छे, उतार के जेवर पकड़ा दिया। सुबह जब हुआ तैयार होना था, माँ जी ओ राती जेड़ा सैट लिया सी, तो दो पुत केड़ा, मां राती नहीं सी दिता, केड़ा जेड़ा राती क्या से जिस सवेरे वापस कर दूं, पुत मैं होर भी 5 विआहने ने, हुण सारे तेनों ही दे छड़ना। बस ठीक है, टाइम लम गया, अल्लाह दी सुपुर्द, हुण मैं रख लिया, सांभ लिया। अब ये जो पहला तारुफ बेटी को हो रहा है, जो दूसरे घर से इसकी तारीफें सुन के आई थी, जो एक ख्वाब बना के आई थी, जो जन्नत नुमा समझ के आई थी, जो अपनी वफादार समझ के आई थी, जिसके माथे की बलाइयां ली गई थी और जिसको मोहब्बत के बोल दिए गए थे, आज जब इंसानी बदलते हुए रवैये देखे हैं तो तारुफ भी बदल गया। अम्मा को फोन करके क्या कहती है, माँ ये तो परले दर्जे दी ठग निकले ना, और वो इसको कहती है तेरी मां दा ये सलूक, ये राती की कहती सी, हुण की तू तो मैनू कहंदा से सुबह मिल जू हुण। बस ये बेचारा यहाँ से रगड़ा गया, वो वहाँ से रगड़ी गई। उतनी देर में आए, वलीमे पे दावत दी हुई थी, ससुराल को तशरीफ लाए, जिनकी तारीफें हो रही थी, आज सारे देख के खड़े हो रहे हैं और लड़के के रिश्तेदारों में से कोई 2-4 शोशा छोड़ते हैं, यार तेरे सहुरिਆਂ ਨੂੰ तो खाण भी नहीं हुंदा, इदां खाण दे जिवें जिंदगी 'ਚ पहली दफा खाना लब्भा। तारुफ बदल गया, जाविये बदल गए, सोच बदल गई, पैमाने बदल गए, लोग बदल गए। और लोगों याद रखिए, रंग जो बदलता है वो गिरगट होता है, रंग न बदले। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, जो तारुफ करवाया है वो तारुफ मरते दम तक रहना चाहिए। पहली कुरान की आयत जो महबूब ने खुतबा में निकाह में पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और लोगों, ये जो तुमने मुआमला चलाया है ये ईमान की बुनियाद पे है। अगर घरों को पुरअमन रखना है तो ईमान से जुड़े रहना, अगर कामयाब होना है अल्लाह से डरते रहना। और ये तुम्हारा प्यार और मोहब्बत का सिलसिला तब तक रहे जब तक कब्र नहीं आ जाती, तुम्हें जुदा करे तो मौत जुदा करे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कोई छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दरमियान जुदाई का बहस न बन जाए। आप अपने घरों में देखें, मैं भी देखूं, हमारे तारुफ बदल जाते हैं।
वही जो अब्बा जी बड़े प्यारे होते हैं बुरे होने लगते हैं, जो अम्मा जी बड़ी अजीम होती हैं जिनके कदमों में जन्नत होती है वो मनहूस लगने लगती है, वो बहनें जो बड़ी अजीम होती हैं वो आज घर के अंदर फूफियां होती हैं और वो बड़ी खौफनाक किरदार बन जाती हैं, और जो भाभियां थी जिनके हाथों से लेके खाता था, तारीफें करता था, आज वो शरीक बन गई हैं, आज सारे बुरे हो गए हैं। वो जो भाई थे आज उनका ये नाम लेना ही गवारा नहीं करता, चप्पन, कद्दू, साला, मुझको भैड़ा लगता है, इस तरह के जुमले बोलता है। फिर तो हम सब साले हैं, हर एक की बहन है, किसी ने दूसरे को दे रखी है, वो मेरी नजरों में बुरा, मैं उसकी नजरों में बुरा। तो आइए तारुफ दुरुस्त रखिए, घर जन्नत नुमा बने रहेंगे। और उसके लिए सिर्फ मीठे बोल, अच्छे बोल, तुले हुए बोल। वला तकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिन्हु गदन, ऐसा बोल मत बोल कि कल को तुझे माजरत करनी पड़े या अपने बोले हुए लफ्ज तुझको वापस लेने पड़े या कार्रवाई से हज़फ करने पड़े। हजरात, दूसरी चीज जो घरों में कामयाबी की जमानत और जन्नत नुमा माहौल की जमानत, मोहब्बतों और इज्जतों की जमानत, वो बोल है मेरे मुस्तफ़ा के, नहमदुहु व नस्तईनुहु। घरों को चलाने के लिए ताआवुन की ज़रूरत, बूढ़े वालिदैन को बच्चों की ज़रूरत, बच्चों को वालिदैन के तजर्बे और दुआओं की ज़रूरत, भाइयों को भाइयों की ज़रूरत, रहम के रिश्तों को रहम के रिश्तों की ज़रूरत, चचा ताऊं को एहतराम की ज़रूरत, दादे पर दादे को जो है वो इज्जत और आबरू की ज़रूरत, सास ससुर साले को इज्जत, प्रोटोकॉल और वकार की ज़रूरत, बीवी बच्चों को भी मोहब्बत और जो है वो एहतराम के साथ उस ताल्लुक की ज़रूरत। ये सब आपस में मिलके होता है, क्योंकि ताआवन के बगैर दुनिया नहीं चलती। अल्लाह ने हर बंदे को अलग हुनर दिया है, अलग फन दिया है। ये बेटी है, ये पकाने के लिए है, ये शौहर है, ये बाहर से सामान लाने के लिए है, ये खिदमत के लिए है, वो मोहब्बत इज्जत एहतराम के लिए है, ये प्रोटोकॉल के लिए है, वो सर पे हाथ रखने के लिए है, ये जो है दूसरों के दस्ते शफकत की कदर करने वाली है। मिलजुल के काम चलते हैं, लेकिन माशाल्लाह शुरू शुरू में हमारा तावन बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैं तो वो बात करता हूँ जो सोसाइटी में चलती है। जब हम शुरू शुरू में जाते हैं ना गाड़ी लेके, माशाल्लाह वापस आ रहे होते हैं, साथ में बहन बैठी होती है, अम्मा बैठी होती है, तो दूल्हे की पहली कोशिश होती है, जान दिया जेड़े नाल बह गए सी हुण मैनूं कल्ले नूं बैण दो। वैसे कोशिश भी आप यही किया करें, इन दोनों को एक अकेला ही रहने दिया करें, मशवरा है। लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, दाएं बाएं बिठाना होता है। अब रास्ते में ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूल्हा मुंह पीछे करके पूछता है, माँ जी इन्हू पूछो की पिएगी, की पीणगे, बल्कि जगह जगह पे सॉफ्ट ड्रिंक और वो हल्की फुल्की नहीं, ये जवाब होते हैं। और माशाल्लाह ये बार बार पूछा। देखिए ना खिदमत का जज्बा कितना है, मोहब्बत का जज्बा कितना है, कितना ताउन किया जा रहा है, कितनी फीलिंग्स आ रही हैं कि कहीं प्यासी ना हो। अच्छा जी फ्रेश जूस बनवा दें, वो ले दें, फुला कंपनी का ले दें, ऐसे वैसे। आखिर जब ना आती है तो कहता यार रोक गड्डी साइड ते ला, खुद ही उतार के ला करके दे रहा होता है। आज ये जो इतनी मोहब्बतें और इतने ताउन पेश कर रहा है, जब कुछ महीने और साल गुजरते हैं, वो बेचारी इंतज़ार करती है, ऑफिस से आ रहे हैं जनाब, तशरीफ़ लाएंगे प्रोफेसर साहब घर में, तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं इनको कुछ कहूँगी। अब इन्होंने मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा दी, कहती अज बहुत तकलीफ सी, मैं बहुत डीके है, तुसी एक 7 अप तो मैनू लिया दो। अगू प्रोफेसर साहब कहते मत्थे च डंग मारे आई, मैं सारा दिन का थका, तो जो बाहर सा उदों कह देंदी हुण मैं उत्ते मेरे कनू नहीं थींदा, वंज भा लगी। वो जुमले बोले जाते हैं जो तड़पा देने वाले, वो इब्तिदा के अय्याम भी नजर आते हैं, आज का रवैया भी नजर आता है। दुनिया जब रंग बदलती है, निगाह के जाविये बदलती है, स्टीयरिंग थोड़ा सा घूमे तो गाड़ी कहीं की कहीं चली जाती है। हजरात हम तो पूरे के पूरे घूम गए हैं, चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। फिर घर में से सुकून कैसे मिले? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अगर मुआमलात हैं रब से मदद मांगो, नस्तईनुहु, रब से मदद मांगी जाए, एक दूसरे का ताउन किया जाए, फिर जाकर के बात बनती है। यहां छोटी सी बात और भी हो जाए, ताउन। मैं बाहर से थका हुआ जाऊं, हर मर्द की तकरीबन ये सैकी होती है कि मैं जदों घर जावां ना तो मैनू को मुठियां भरे, कोई लत्तां घुट दे, कोई मत्था घुट दे, कोई पैर घुट दे, तो माशाअल्लाह अक्सर हो भी जाता है। अल्लाह ताला जज़ा देवे घर वालियां नूं, इन्ना के एहतमाम पुराने हो के भावें ना करन, नवे नवे दिनां तो खैर सिलसिले इदां दे चलदे ही नहीं ना हुंदा जी, चलो बड़ा शौक और शौक खिदमत के लिए। लेकिन एक वक्त आता है हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, नाराज़ ना होना,
बात अगर घरों की चली है तो ये इस हाथ दे उस हाथ ले। इज्जत लेना चाहते हो तो इज्जत दीजिए, प्यार लेना चाहते हैं तो प्यार दीजिए, एहतराम लेना चाहते हो एहतराम बांटिए, सुकून लेना चाहते हो सुकून बांटिए। ये तब तक मुमकिन नहीं, ये एक तरफा बातें नहीं होती। मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, जो हो दोनों तरफ से तो मजा देती है। अच्छा है तो सिर भी घुटे तो गोली भी लिया के दे तो चाह भी बना के दे, तो जे ओनू विचारी नू किते सिर पीड़ या तकलीफ हो जाए तो क्या ओदा दिल नहीं होनी सोचदी होनी। लेकिन क्या करेगा अगर ऐसे कर बैठा तो जे किते अब्बा जी ने अम्मी जी ने झीत चू वेख लिया, मैं लफज झीत बोलन दिया, पता नहीं इत्थे तुहाडे बोलिया जांदा कि नहीं। हाँ जी, जे उन्हें वेख लिया उन्हें कहना भलिए इधर आ जरा, आ वेख रन मुरीद खिदमत करन दिया ही। वो भाई उसकी टांगे नहीं दुखती, उसका सर नहीं दुखता, उसको कहा जाए कि उठ मारते चाप काला तो गोली खा ले। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, सब बस जाते हैं। ट्रक्कां पीछे लिखिया सी अज भी मुरीद के तू आउंदियां ते उरे नूं भी मुड़दियां एक दो ट्रक वेखे ने जिन्हां पीछे जुमला लिखिया सी नहीं वसदे घर बद निश्तां दे। जब नीयत में फतूर आ जाए और खोट आ जाए और दो नंबर ही हो जाए, लेने के पैमाने और देने के पैमाने और हो जाए, रब का कुरान कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके पैमाने बदल गए, नाप तोल के पैमाने और लेने के पैमाने और देने के पैमाने और। लेना हो तो अपना हक पूरा पूरा बल्कि बढ़ के लिया जाए, देना हो तो उठ मारते चाह बना ला तो खा पी ले तो मर ले। ये सिर्फ उस तराजू के लिए नहीं है जो दुकान में है, घर में मोहब्बत और प्यार के तराजू भी जिन्होंने बदले हैं। मैंने उनके घरों की बर्बादी देखी है, आबादी नहीं देखी। शादी खाना आबादी लिख तो जी जाती है, मगर आज आपको पता होना चाहिए हम निकाह थोड़े पढ़ा रहे हैं, तलाकों के फतवे रोजाना ज्यादा दे रहे हैं, खुले ज्यादा हो रहे हैं। कोर्ट मैरिज मोहब्बत लव जितनी बढ़ गई, प्यार और मेयार जब उसकी कदर नहीं रही, वकार नहीं रहा, तब से बर्बादियां शुरू हैं। तो घर में एक दूसरे का तावन कीजिए और बुजुर्गों से बड़े अदब के साथ हाथ जोड़न दा फायदा तो कोई नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अदब नाल कि बच्चों ते थोड़ा जिहा तरस खाओ। ये बेचारे किधर जान तुहाडे पुत्र, जदों इन्हां दा विआह हो जाए जे मां दी मन्ने ते वो बूढ़ी जाके अपने घर पता पेके की दसदी है, मां पुछदी सुना पुत किदां दा, मां ना ही पुछ, वेखण नूं प्रोफैसर हैगा लाई लग गई, वेखण नूं बहुत वड्डा चौधरी है पर लाई लग गए, वेखण नूं आ है पर लाई लग गए। लाई लग किनूं कहिंदे? जेड़ी गल मां ने कही उहने मन लई तो लाई लग, जे भैन ने कही तो लाई लग। ते अपने घर वालियां च की तारुफ है, ज़ाहिर है कोई एक ओदी भी मननी पैंदी है, ओदी भी सुननी पैंदी है, बाकियां नूं की। ते जे इन्हें ओदी मन लई ते माशाअल्लाह अब्बा जी ने कहना है रन मुरीद, बेबे ने कहना है रन मुरीद, भैणा ने भी कहना है रन मुरीद। मेरे पास वही सिस्टर आई, प्रोफेसर साहब तवीज लिख दो, मेरा बंदा ना मेरा ही मुरीद होकर है, जब मेरी सुने मेरी सुने। तो मां भी आई, हाँ तुहाडे बारे सुनिया तुसीं एवें कर लेंदे हो कर लेंदे हो, तो तुहाडी मेहरबानी कोई इदां दी गंढ बन दो इहदे अल्लू ना हिले। मैं पूछा जी सुनाओ घर नौहां दा की हाल है? बस पुत ना ही पुछ, मेरे तो पुता ने कभी मेरी सुनी ही नहीं। मां चंगे नहीं? नहीं नहीं, अंतरे नकतरे मेहनत कर कर थक गई, पढ़ा पढ़ा थक गई। हजरात हमने खुतबा निकाह को जाना ही नहीं, जहां दोहरे पैमाने हो दोहरे मेयार हो, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। जब ये पैमाने बनाओगे, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का, फिर बाकी सब कुछ बच जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। दीवार की ईंटें भी रहने दीजिए, सब कुछ रहने दीजिए, बीच में से मिलाने वाला सीमेंट मटेरियल मिसाला किसी भी वजह से निकाल दीजिए या खुरच दीजिए, दीवार मजबूत नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा था दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। तुम थोड़ा सा लोगों को मौका दो, दूजा आदमी बल्कि तीजा, वैसे तो पंजाबी में द्विचला ही कहते हैं, तीजा रलिया नहीं तो चुगा गलिया नहीं। इसलिए इस रिश्ते में किसी को मत आने दीजिए, अपना ताउन। और तीसरी चीज वनस्तगफिरुहु, घरों को बचाना है, चलाना है, मोहब्बत से निभाना है।
इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है। फरिश्तों से गलती होती नहीं, शैतान गलती करके अकड़ जाता है, लेकिन इंसान वो होता है जो गलती का इम्कान भी हो, गलती हो जाए, अपने रब से मदद मांगे, नहीं माफी मांगे, वनस्तगफिरुहु, और जिसके साथ गलती का मुआमला हुआ है उससे एक्सक्यूज कर ले, माफी मांग ले। वैसे मर्दों की अक्सर सैकी ये होती है, गलती भावें मेरी होवे, माफी फिर भी बूढ़ी मंगे। और आजकल ड्रामे में दूसरी तरफ ये सिखाया जा रहा है, गलती भावें तुहाडी होवे, रुसना फिर भी तुसी हैं। नहीं, ऐसे मत करें, थोड़ी नरमी रखें। प्यार और मोहब्बत अगर चलाना है, घरों को कामयाब बनाना है, तो फिर गैरों की तरबियत नहीं लीजिए, बल्कि आपस में मिलकर रहिए। गलतियां हो जाती हैं, गलती के ऊपर डटे मत। थोड़ा जो झुक गया मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, मेरा रब झुकी शाखों को जो है वो फल लगाता है, अल्लाह इज्जतें देता है। एक्सक्यूज करने में, मुआफी मांगने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, दोनों में से अच्छा वो है जो अपनी अना और अकड़ पहले खत्म कर दे। कल्ले सिर नहीं हिलाउणा है। अगर कोई इदां दा रोला फड़ा है, जलसे दी कामयाबी सीरतुन नबी, मजा तब है आज जाते हुए आपने हाथ पहले आगे करना है। जो मैं रात का इंतजार नहीं करना, वो कल आनी है। अपना हाथ पहले बढ़ाइए, रात है या दिन है, जगा लीजिए। और ये कब मुमकिन है? नस्तगफिरुहु, बंदा रब के सामने जब झुकता है, न गर्दन में सरिया रहता है, न कमर के कड़े सीधे रहते हैं। हर चीज उमिरतु अन अस्जुदा अला सबाति आज़म, अपने आप को झुकाना होगा, रब से मुआफी मांग के, इस्तिगफार करके, बंदू से एक्सक्यूज करना होगा। अल्लाह कामयाबियों से हम किनार कर देगा, घरों में मोहब्बतें दे देगा। इस हवाले से बाबा जी की दो चार बातें कोड करने लगा हूं। ते वड्डियां दे अखान ते सच हुंदे ने, बड़ों की बातें ऐसे नहीं होती। माशाल्लाह, मैं कल अहलन व मरहबा, हमारे दिलों की आवाज़, चैन, सुरूर, अल्लाह ताला इस आवाज़ को सलामत भी रखे, और इनका फैज़ान जो है कुरान के साथ जो जुड़ा हुआ है, दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। अल्लाह ताला हमें उससे महजूज रहने के वसाइल और जो है वो मौके मुहैया करता रहे। हजरत, हम बात कर रहे थे, ये सब मुमकिन है, लेकिन पहले अपना सरिया निकालिए। हमारे यहाँ ना 3 बड़े सरिया आए हुए हैं। पहला सरिया है हुस्न जमाल का। दो चो जेड़ा जी सोना होया ना, उन्हें सरिया सारी जिंदगी नहीं कढ़ना। लै ये मेरे प्यो का हौसला सी, चन्न वर्गी धी तेनू दे छड़ी, तेनू पुछदा कौन है? और फिर हमने नाम ले लेके कहना होता है, बार बार कहना होता है। तेरे हल तो वेखण नू दिल नहीं करता। बाबा जी कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि मर्द वैसे ही सोहने होंदे ने। अल्लाह का शुक्र है मर्द वैसे ही सोहने होंदे ने। जे किते ये भी सोहने ना होंदे तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा डबल हो जाना सी। और बाबा जी ने तो ये कहा है, मेरा कहना ये है, बीबियां अगर मेरी बहनें, बेटियां, माएँ सुन रही हैं तो गुस्सा करने की बजाय ज़रा सोचना ज़रूर, मेरे रब ने मर्द से बढ़ के कायनात में हसीन कोई बनाया ही नहीं है, 4 कसमें खाई हैं। वैसे तो सबको खूबसूरत बनाया, लेकिन अल्लाह का असूल है कि अल्लाह नर को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। बंदा नर होवे सही, ये शर्त है, वो खुद को नर समझता हो। मेरे रब ने नर से बढ़ के हसीन ही बनाया। जा चिड़े को और चिड़ी को देख, कभी ब्यूटी पार्लर ले जाने की जरूरत नहीं, जैसा रब ने बना दिया है। इनको कहीं जज बिठाएं, 3-4 मुकाबला हुस्न करवाएं। अगर चिड़िया जीते तो मुझे एक दफा फोन जरूर करना, चिड़ा जीत जाए तो जरा सोचना। हजरात, कबूतर और कबूतरी का मुकाबला कर लें, बटेर हैं, इन दोनों को रख ले, नर मादा को। हजरात, यकीन नहीं आता, जाइए मोर और मोरनी को देखिए, जिसके पन पंख और सैकड़ों कलर जिसमें खिल रहे होंगे, उसे नर कहते हैं। जेड़ी बेचारी लुंडी बुच्ची होंगी उन्होंने मादा कहते हैं। चेक कर लीजिएगा, फिर भी यकीन नहीं आता। शेर और शेरनी जंगल की ले आए, पूरी वजाहत के साथ। जो खड़ा होता है बब्बर शेर, क्या होता है? जब तक आप उसे ब्यूटी पार्लर नहीं लेके जाएंगे, बब्बर शेर है।
اور اگر آپ کو بہت زیادہ لگے کہ نہیں عورتیں زیادہ اور مادہ خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر کہیں ببر شیر کی کلین شیو کروا کے کسی بیوٹی پارلر سے اس کا فیشل کروا کے پھر لا کر کے کھڑا کر کے چیک کر لینا کیسا لگے گا. حضرات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، حسن کا سریا نکال دیجئے اور بناوٹی سریے ڈال ڈال کے جو قائم کھڑے ہیں گھر توڑ لیتے ہیں. میں زیادہ سونا، وہ کہندی نہیں میں زیادہ سونی. اسی چکر میں دوسرا سریا ہے پیسے کا. میرا پیو مالدار، تانوں کمیاں مسلیاں نو کنے پوچھنا سی؟ میرے پیو دی مہربانی ہے، شکر کرو، جا کے قبر نو سلام کرو، تانوں دے چھڈی ہے. حضرات پیسے کو سلام. ادھر یہ کہہ رہا ہے شکر کر تہاڈا رشتہ کنے لینا سی، میرے پتر نے لے لیا ہے. اچھی یہ بینک بیلنس دولت یہ سریا نہیں نکلتا. اور تیسرا سریا وہ برادری کا، قبیلے کا. اچھا جی اسی جٹ ہونے ہیں، تسی تانوں کون پوچھدا سی؟ اسی رانے ہونے ہیں، تانوں کنے پوچھنا سی؟ اسی آ ہونے ہیں، تانوں کنے پوچھنا سی؟ تو یہ سریے نکال دیں. بابا جی نے کہا ہے پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہا، تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. جس دن یہ میں ختم ہو گئی نا، آپ یقین کریں، میں جس دن ختم ہو گئی اس دن ہمارے گھروں میں چین، آرام اور سکون شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں آ رہا ہوں سورۃ النساء کی پہلی آیت کی طرف. محبوب خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے اور گھروں کو جوڑے رکھنے کا، آباد رکھنے کا، خوشیاں دینے اور خوشیاں لینے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا. پڑھتے تھے آپ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اگر گھر چلانے ہیں تو انسانیت دیکھنا. انسان بڑے ہیں، انسانیت بڑے تھوڑوں میں ہے. میں نے کلو لیے وہ بادام دیسی پیور مقامی، لیکن وزن میں وہ کلو تھے. گھر لے کے لا کے توڑے، آدھے خالی نکلے، آدھے جلے ہوئے نکلے، کوئی بیچ میں سے فضول کا نکلا، کام کے صرف پاؤ ڈیڑھ پاؤ نکلے. دیکھنے میں وہ کلو بادام تھے. 7.5 ارب انسان ہیں مگر انسانیت کتنے تھوڑے لوگوں میں ہے. کبھی تعلق ہو، کبھی واسطہ پڑے، کبھی جو ہے آپ اس سے معاملہ کریں، کبھی اس کی ہمسائیگی میں رہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ انسان ہے یا حیوان سے بھی گرا ہوا پرلے درجے کا کوئی بدگمان آدمی ہے. یہ تو پتا تب چلتا ہے، قومیں بڑی نہیں ہوتی، رویے بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے انسانیت، اور انسانیت کا سب سے بڑا جوڑنے والی چیز کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے یکجان بن کے رہیں. اور حضرات یکجان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ میرے بزرگ بھی سن رہے ہیں، ظاہر ہے یہاں بڑے بڑے سسر بیٹھے ہوں گے، داماد بیٹھے ہیں، ساسیں ہیں، بہویں ہیں، بھابیاں ہیں، نندے ہیں، سبھی سنیں. خلقکم من نفس واحدہ، میرے رب نے زمین کے اوپر انسانیت کا جو سب سے پہلا تعارف کروایا ہے. میں بتا چکا کہ مرد شوہر کے روپ میں آیا ہے اور عورت بیوی کے روپ میں آئی ہے. اماں پہلے نہیں ہے. ناراض مت ہونا، علماء بھی بیٹھے ہیں، علیہ علم بھی. میں ترتیب کی بات کر رہا ہوں. رب نے جب بنایا تو آدم علیہ السلام کو باپ نہیں پہلے بنایا، شوہر بنایا. اماں جی حوا کو پہلے اماں نہیں بنایا، بیوی بنایا ہے. نیا یونٹ لگنے لگا ہے. جب نیا گھر چلتا ہے پہلا جوڑ جو جڑتا ہے اللہ تعالیٰ بیوی اور شوہر کا ملاتے ہیں. لہٰذا پہلی عزت، پہلا سٹیٹس، پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلی شان. اور سوسائٹی کو چلانے والے اور اس معاشرے کو بنانے والے اگر سب سے پہلے دو روپ ہیں تو میاں بیوی کے ہیں. ان کو معزز کر دو. اور یہ معزز کیسے ہوں گے کہ ان کو یکجان رہنے دے، ان کو الگ الگ نہ کریں. جس دن آپ نے الگ کر دیا بچے زندہ یتیم ہو جائیں گے، زندہ ماں باپ کے یتیم. باپ مر جائے تو چین آ جاتا ہے، ماں مر جائے تو سکون آ جاتا ہے، مگر باپ بھی زندہ ماں بھی زندہ، بچے دونوں کو دیکھیں مگر مل نہ سکے، عدالتوں کوٹ کے کچہریوں میں دھکے کھائیں. تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب قوم کے رشتہ دار مل کر کے اس بنیاد پہ رشتے توڑ دیتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، بیوی کے نخروں میں نہیں. یہ جملہ ہم ہی بولتے ہیں. اور ہمارے وڈیرے کہہ دیں پت انہوں فارغ کر دے، بڑھیاں بڑیاں لب جانیاں، ماں نہیں لبنی. یہ جملہ بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟
اللہ کے لیے اس جملے کو واپس لو. یہ توڑنے والا، یہ کاٹنے والا، یہ حقیقت کے خلاف جملہ ہے. اور لوگوں جس کو طلاق دلوا رہے ہو، جس کو کہہ رہے ہو بیویاں اور بھی مل جائیں گی، وہ بیوی تو کسی کی ماں ہے نا، اس کے بچے گھر میں دیکھتے ہیں میرے دادا ابو اپنی بیوی کی تو بڑی قدر کرتے ہیں، وہ جو کہتی ہیں اشارے سے مانتے ہیں، بیچارے کسک نہیں سکتے. تو میری ماں دے جیڑا نا کوئی پیراں تھلے چھالے نے، دادی اما دے پیراں تھلے جنت ہے سارے پتراں لئی. تے جیڑی ساڈی ماں ہے وہ بیچاری دی دوجے دن گوت پھاڑ کے تے باہر کڈیا ہوندا ہے. چکر کی ہے؟ یہ دوہرا معیار مت کھیلیں گھروں میں. لڑائیوں کا سبب، جھگڑوں کا سبب یہ کسی یہودی کی سوچ، ہندو کی سوچ، مجوسی کی سوچ، سکھ کی سوچ، پرلے درجے کی وہ ملحد کی سوچ ہو سکتی ہے، مگر مومن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے. میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاقی رویے مناسب رکھتا ہوں. تو اپنے بچوں کو جو آپ کی بہو ہے اور اپنے بیٹے کو یک جان رہنے دیں. اور میں ان دونوں سے بھی کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آ کے مثالیں سن کے گرم مت ہو جایا کریں. وہ جی ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے پوتنوں کیا اپنی نہ دہلیز بدل ہے، وہ نہ بدل لی. وہ فلاں صحابی تھے، انہوں نے ایسے کہا تو ایسے ہو گیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر اس موضوع کے اوپر ایک لمبی بحث کی ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ. تم نے رب کا نام لے کے یہ رشتہ لیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. رب کا نام لے کے تم نے عزت لی ہے، یہ رحم لیا ہے، یہ اس بوڑھے باپ کی عزت لی ہے، یہ بھائیوں کی بہن لی ہے. آج اس کے ساتھ رب کے نام لے کے اگر تم نے دغا کیا تو پھر تم سے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ذرا خیال رکھنا، ذرا دھیان رکھنا، اور اس کے لیے یک جان بن کے رہنا. اور یک جان کیسے بنا جاتا ہے؟ ساری دنیا بھی کھینچے تو ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامے کہ یہ ہاتھ چھوٹنے نہ پائیں، وگرنہ بعد میں روتے پھرو گے قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند. جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا پھر جو چھڑوانے والے ہوتے ہیں نا 2 دن روٹی دے کے تیسرے دن تان نہیں دیتے ہیں. اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جڑ کے یک جان بن کے رہیے. اور یہ اللہ نے خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور دوسری بات، ماں کا رتبہ، مقام، عزت، احترام اللہ نے بہت رکھا ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے. مگر کب؟ جب ماں بنے. ماں تب تک نہیں بن سکتی جب تک بیوی نہ بنے. جب تک بیوی نہ بنے. اگر بیوی بنے بغیر ماں بنے گی، جوتے ہیں، انسلٹ ہے، بے عزتی ہے، رسوائی ہے، جگ ہنسائی ہے. نکاح کر کے پہلے بیوی بنے گی، پھر رب ماں بنائے گا تو سٹیٹس اور رتبہ بڑھ جائے گا، گریڈ بڑھ جائے گا. لہٰذا ہر ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں آج ماں بنی ہوں تو پہلے بیوی تھی، پہلے میں بہو تھی. لہٰذا جو آج میری بہو آئی ہے وہ آج بیوی ہے، اس کا بھی وہی مقام ہے جو میرا ہے. جس علاقے میں پرائمری کے اسکول کے ٹیچر کی عزت نہیں، وہاں ہائی اسکول یا کالج کے اگر آپ پروفیسر کی عزت کر رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں رکھتا. جب بنیاد ہی نہیں کسی مکان کی اور اس کی عزت نہیں تو اوپر چھت کی آپ عزت اور ڈیپ ٹاپ کر رہے ہیں تو کوئی مزہ نہیں ہے. لہٰذا رب خود کہتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. سب سے پہلے رب نے زوج کا جوڑے کا ذکر کیا ہے، اور دنیا کا پہلا جوڑا مرد شوہر کی شکل میں اور عورت جو ہے وہ بیوی کی شکل میں. اس کی قدر کریں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اس کے بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی قدر کریں. بیٹیاں پیدا کرنا عورت کا کام نہیں، مرد جو دے گا اس کو واپس ملے گا. یہ مرد کا نقص ہے، قابل علاج ہے. لہٰذا کبھی بھی کسی بیٹی کو اس لیے طلاق مت دلوانا کہ اس کے بیٹیاں ہو رہی ہیں. میرے فیصل آباد کا وقوع ہے. ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نو فارغ کر منوس ماری نو. کہندی ماں کی ہویا ہے؟ کہندی ہے کہ جدوں دی آئی ہے نا یہ میری تیاں دے گھر تیاں جمن لگ پئی ہیں. اس کے اپنے 2 بیٹے ہیں پروفیسر صاحب، لیکن ماں کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں فارغ کر. کیوں؟ جب سے یہ آئی ہے تو میری بیٹیوں کے گھر بیٹیاں ہونے لگی ہیں. نوبت بڑی دور تک چلی گئی. فیصلہ مجھے کرنا تھا، گھر گیا، ملے. میں نے کہا جی ماں جی کیا کہنا ہے؟ کہندے پوت آ گل ہے. میں کہ ماں جی واقعی تسی سچے جے، تسی صحیح کہن ڈے ہو. یہ تواڈے منڈے نوں نا تواڈی نوہ نوں طلاق دینی چاہیے. کہندے پوت پہلا مولوی آیا جنہیں میرے نال دی گل کیتی، باقی تے سارے یہی کہندے سی ماں زیادتی نہ کر، او دے تے منڈے نے، یہ بھی یہی بکدی ہے. کہندی میرے منڈے نے نہیں، جدوں دی پت آئی ہے یہ ادوں دیاں ہی میرے کڑیاں دے گھر کڑیاں. میں کہ تواڈے شوہر کتنے نے؟ کہندے جی باہر. میں کہ جی بلواؤ. آئے.
मैं क्या जी अपनी बुढ़ी का साथ दवो, ये सच्ची है। अपने मुंडे नूं कहो इनू तलाक देवे, लेकिन पहला काम तुसीं करो ना कि इनू तलाक दवो। कहंदे क्यों? मैं क्या ये तो बाद च आई सी, जदों इहदे घर कुड़ियां ते कुड़ियां जम्मी जांदियां सी, तुसीं इनू फारग क्यों नहीं कीता? इनू फारग क्यों नहीं कीता जदों इहने 5 जम्मियां सी? वो तो उसके आने के बाद इसकी बेटियों के घर बेटियां हुई, जो तेरे घर में 5 बेटियां थी। आज ऐसी औरत ना रखी होती, ये अगला मरहला ही ना आता। कहंदी मौलवी साहब रब दा वास्ता जे इन्हू दोबारा ना आख्या जे है लाई लग जे, इन्हें तुहाडी मान लेनी जे। मैं नहीं कहंदी दोबारा, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी जानदे हो। हजरात अल्लाह के लिए धोखे मत दें। एक और आया पाक पतन का हमारा दोस्त, हमारा साथी, जुमे का दिन अफीसर कॉलोनी फैसलाबाद में जुमा पढ़ने के लिए आया। कहने लगा जी आज आपको गवाह बना के कहता हूं, मेरी 6 बेटियां हैं। आज के दिन भी जुमे का था, तारीख भी आज की थी, हमारी शादी की एनिवर्सरी में उसी दिन इसको तलाक देने आया हूं। जुमे के बाद मिलके खाना खाएंगे, खाने के बाद बाइज्जत तरीके से, कुरान ने कहा रखा हो तो अच्छे तरीके से रखो, और तसरीहुम बेइहसान, छोड़ना है तो अच्छे तरीके से। मैं आपको गवाह बना के इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि बेटियां बेटियां पैदा कर रही। मैंने कहा जनाब चौधरी साहब थोड़ा सा एहसान मेरे ऊपर करें, आप मेरे फैसलाबाद में आ गए हैं, बच्चियों का कसूर नहीं, इसका भी कसूर नहीं, आप मुझे सिर्फ 1 साल का मौका दे दें। अल्लाह आप जाएं, अगले साल इसी दिन में आकर के तलाक दे देना, मुझे कोई एतराज नहीं। वापस चले गए, मेडिसिन में फैसलाबाद से भेजता रहा। अल्लाह ताला ने बेटा दिया, नाम अब्दुल रहीम रखा। मेरे साथ गए, इकट्ठा उम्रा किया। अल्लाह ने फिर दूसरा बेटा दिया। अब माशाल्लाह 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। ये चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में हैं। अभी पिछले साल फौतगी हो गई तो हमें जाना था, मिसेस भी साथ थी। मैं डायरेक्ट वहाँ पाक पतन पहुँचा क्योंकि अम्मा जी की वो उम्रा फैलो थी और माँ जी ने कहा था बेटा जेड़ियां दा मेरे नाल ताल्लुक सी उन्हां दा ख्याल रखी। तो मैं मिलने गया उनकी माँ जी को भी, तो उनके घर भी गया। मैं क्या जी सुनाओ की हाल है बच्चों का? कहते प्रोफैसर साहब एक दफ़ा झोली चुक के किते कह दो ना ये मगरों लै जान, ये नालों मैनू 6 धीआं चंगियां सी जिन्ना इन्हां 2 ने सता छड्डिया ना, मैनू नहीं चाहिए जे पोते इदां दे हुंदे। तो मुझे सूरत उन्निसा की आए विरासत याद आ गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए फ़ायदामंद कौन है। लोगों अल्लाह के लिए घरों को बसाना है, की वजह से तलाक नहीं। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ये मेरी गुफ्तगू का सेकंड लास्ट नुक्ता है कि अगर घरों को बसाना है तो रहम की कदर करो। रहम 3 होते हैं, रहम 3 है। एक अल्लाहुर रहमान, रहमान ने रहमत की 100 किस्में बना के 100 हिस्से करके एक हिस्सा दुनिया में बांटा और मादा औरतों के पेट में वो पुर्जा बना दिया जिसमें बच्चा परवरिश पाता है, जिसे रहम कहते हैं। और 99 हिस्से अपने बंदे की बख्शिश के लिए रब ने अपने पास रखे हैं। 1% हिस्से में इतनी ताकत है कि दरिंदा जानवर भी अगर अपने बच्चों को मुंह में उठाती है तो दांत नहीं चुभने देती। ये रहम है, ये रहमत है। अब आइए, अल्लाह ताला ने जो हमारे अब्बू को किसी ने बेटी दी थी, हमारे अब्बू को, उसको हमारी अम्मी कहते हैं। उस मां के रहम से मैं पैदा हुआ, मैं बना। जो मेरे भाई पैदा हुए वो मेरे भाई बने, जो मादा पैदा हुई वो मेरी बहनें बनी, जो मेरी दादी अम्मा के रहम से पैदा हुए वो मेरे अब्बू हैं और उनकी बहनें मेरी फूफियां हैं और उनके भाई मेरे चचे और ताए हैं। और उस रहम का जो मालिक है, सरबराह है, केवाम है, वो मेरे दादा अब्बू हैं। अल्लाह कहते हैं रहम के रिश्तों का ख्याल रखना, ये तुम्हारी असल के रहम के रिश्ते हैं। शादी हुई है नई नई, बीवी मिली है नई नई, रिश्तेदार मिले हैं नए नए, लेकिन तेरी असल, तेरी जड़, तेरी असास उस दरख्त पे फल नहीं लगा करता जिसकी जड़ें काट दी जाएं। लिहाजा अपनी नस्ल को बचाते बचाते 1.5-2 मरले के मकान के पीछे भागते भागते अपने विरासत के मकान, अपने अब्बू जान, अपनी अम्मी जान, अम्मी के रहम के रिश्ते, सगे भाई, सगी बहनें, सगे भाई, चचे ताए, अपने दादे, इनको मत भूल जाना, इनकी भी इज्जत करना, वगरना तेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। एक पासे जो नर्सरी तैयार होवे, दूजे पासे बंदा मूंजी तैयार नूं छड़ देवे तो नर्सरी सांभदा फिरे तो मूंजी नूं सांभे ही ना, झोना उदां दा उदा उजड़ गया ना बेचारा। और दूसरा रहम का रिश्ता वो है जो अल्लाह ने तुझे दिलवाया। एक अजनबी मर्द ने अपनी बेटी
अपनी इज्जत तेरे हवाले कर दी, उसके रहम से तेरा ताल्लुक जुड़ा। जो नर पैदा हुए वो तेरे बच्चे, तेरी नस्ल, जो बेटियां पैदा हुई वो तेरी नस्ल, और ये ससुराल तेरे नस्ल के तहफ्फुज के, ये रहम के रिश्ते, इनका भी ख्याल रखना, कहीं असल बचाते बचाते नस्ल बर्बाद ना कर लेना। क्योंकि बड़े सारे लोग रहम के रिश्ते दादा अबू के पीछे और अपने परदादा के पीछे, चचू के पीछे, ताए के पीछे, अब्बा जी के पीछे, अम्मी जी के पीछे, फूफी जान के पीछे, बहनों के पीछे अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, नस्ल बर्बाद कर लेते हैं। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, लोगों रहम के रिश्तों के तकाजे पूरे करना, अल्लाहुर रहमान की इबादत और बंदगी मत छोड़ना बीवी बच्चों के चक्कर में, और अपने वालिदैन को मत छोड़ देना नस्ल के चक्कर में, और असल के रहम के रिश्ते यूं बर्बाद मत करना, और नस्ल के रहम के रिश्ते असल के पीछे माँ बाप की बात में आके उन्हें ज़ाय मत कर देना। आते कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, सबको उनका प्रोटोकॉल और इज्जत देना ये तेरी जिम्मेदारी है। और ये मुमकिन कैसे है? ये मुमकिन कैसे है? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ये मुमकिन तभी है जब तुम रब को निगरान समझो, और जब बंदा रब को निगरान समझता है ना, अल्लाह के खुफिया कैमरे देख रहे हैं। फेसबुक पे भी चला, हमने भी अपनी मस्जिद में कई अरसे से लिख के लगाया हुआ था, अल्लाह देख रहा है। कभी जूते उठ जाते, कभी टूटियां खुल जाती, कभी यूपीएस निकल गया, कभी बैटरी चली गई। माशाल्लाह कुछ अरसे से वो कैमरे लगा के ना, ये जो लगे होते हैं सिक्योरिटी के, तो लिख दिया गया खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। साल हो गया, अल्लाह का शुक्र है सुकून है, लेकिन अभी हमने कनेक्शन नहीं किया पीछे कैमरों का, वो कनेक्शन करना है। सुकून है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। जब रब का पता हो ना देख रहा है, तो बंदे की ऑडियो वीडियो बड़े हिसाब से बयान दिया जाता है। इसी पे एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, सीधे भी हैं, सादे भी हैं, और वालिदैन के बड़े खिदमत गुजार, सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को घर आते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनकी आदत थी रोज़ाना 2 बड़े शापर भर के लाते थे। दरवाजे पे दस्तक देनी, माँ जी ने सबसे पहले खोलना, दोनों शापर माँ जी के पास रख देने, माँ जी से प्यार लेना, मुठियाँ भरनी, माँ जी ने थपकी देनी, शाबा मेरा पुत सारा थके आया जिंदा, ले आती है खाना शाना ला। आज दाखिल हुआ है, कुंडी कोई नहीं खोल रहा, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, कोई नहीं खोल रहा। आखिर खुला ही खुला, ते दोवें शापर फड़े, तो माँ जी अगे सिर कीता, माँ ने मारी लत, पिछे नू डिग्गा दोवें शापर, सेब उधर, दूसरा माल उधर, तो कहती जेड़ी अंदर बन्नी ओनू दे। वो बेचारा सीधा साधा उठ के ना छापरां च पा के ना सारे फल फूल ते अंदर नूं टुरन लगा, तो मां पिछू पट पिटन लग पई। हाय अपने ही पुत कपुत हो गए, अपने ही पुत कपुत हो गए। सच्ची बात करी थी सियाणिया ने, अपने ही पुत कपुत हो गए। की पुत कपुत हो गए? कहते थे तवा होवे मोटा रोटी सड़े क्यों। हाय अपने ही पुत कपुत हो गए। चौधरी चंगा होवे पिंड च पुलिस बड़े क्यों, जात होवे कबूतर दी इल फड़े क्यों। हाय अपने ही पुत कपुत हो गए, हाय अपने ही पुत कपुत हो गए। नौ हो पुत होवे चंगा तो नौ लड़े क्यों, पुत होवे चंगा तो नौ लड़े क्यों। पुत कवे करा की केड़े पासे जावां। पहले क्या उधर जा धक्का मार के सिटिया, जाके बीवी नू फड़ाया, बीवी कहती जेड़ी बाहर कुत्ती बन्नी है उन्होंने दे, और जेड़ी बूहे ते बन्नी है। अब ये बच्चा किधर जाए? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। प्रॉब्लम ये है बच्चे से फैसला सभी उम्मीद रखते हैं मेरे नाल दा होवे, मेरी गल करे, लेकिन अदल करने की कोई नहीं कहता, कौले सदीद कोई नहीं कहता। रिपोर्टिंग में रंग ही ऐसा भरते हैं, अल्लाह माफ करे, कैमरा उन्हें रंग नहीं भर सकता जिन्हें असी भर दे देने। ये रंग भरा जा रहा है ना, वो उसको क्या कह रही है, वो दुश्मन वैसे, ये उसको क्या कह रही है, पुत्ती कपुत हो गए। अब किस तरफ जाए, किसकी सुने? जिसकी माने, माँ की माने तो लाई लग है, बीवी की माने तो रन मुरीद है। जब जज को आप अपने दिल से स्टाम्प लिख के नहीं देते तो फैसला क्या होगा? अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह गवाह है, अल्लाह शाहिद है। आइए अगर वालिदैन थोड़ी मोहब्बत करें, ये माँ कहती, सब्र करती, इंतजार करती, बच्चे को प्यार देती, पास बिठाती, खाना खिलाती, फिर प्यार मोहब्बत से कहती पुत मेरे को अज गलती हो गई सी, बुढ़ा खून आ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, ये बच्ची ने कोई गल की थी मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बोली, पहल मेरी है, मैं ही ज्यादती की है, तो पुत गुस्सा ना करी, बच्चे इतने जालिम नहीं है कि माँ बाप को गालियां देंगे। मोहब्बत बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। और अगर बीवी से गलती हुई थी, बैठते खाना खिलाते खिदमत करते, और फिर कहती सरताज ये भी मेरी माँ है, जड़ी मैं पीछे छड़ आई वो भी माँ है, गलती ये हुई है,
ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸੂਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ आ गया, मैं अगू बोल बैठी, माँ जी दी गलती नहीं, ज़्यादती मेरी है। अल्लाह की कसम माएँ भी इतनी जालिम नहीं होती कि बेटे को कह के तलाक दिलवाएं, लेकिन शर्त यह है वक़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। घरों को आबाद रखना है तो अल्लाह और उसके रसूल की मना करें, अल्लाह और उसके रसूल की। ये मेरा खुलासा है, बात मेरी लास्ट हो चुकी है और इस ततिम्मे पे हम सारी बात ख़त्म कर रहे हैं। घरों में खुशियाँ लेना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल को खुश रखिए। बहादुर शाह सफ़र ने बड़ी दुनिया की बहार भी देखी है और ख़ज़ां भी देखी है, उसने ज़िंदगी का खुलासा निकाला। ज़फ़र उसे मत जानिएगा साहिब फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहे। हम जब खुशी में आते हैं तो हमें रब भूल जाता है, और जब हम गुस्से में आते हैं और फिरौन बनने की, नमरूद बनने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कोई रब्बे जब्बार कहार भी है। खुशी में बिलखुसूस जो हमारे अंदाज हैं, मैं वीर एक नूं पुछया, मैं क्या सुना शादी हुई सी कि कहंदा जी वो गल पाया ढोल वजाना पैण डिया, गल पाया ढोल ते भाई ढोल ते वजना ही ने। कहा जो सी भी बरात आयो तो गज वज के आयो, भाबियां किते चुप कीते ना आई अज, हुण तो भाभी भी गजन वजन लग पाया। अल्लाह के लिए सोचिए, मुस्तफ़ा की पैरवी करके खुशियां, नाफरमानियां करके खुशियां नहीं। मेरे नबी की अपनी तहजीब है, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से न कर के खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। मेहंदी लगाने से कौन रोकता है? मेहंदी की रस्म करें, उस दिन जिन्ने बाबे ने जिन्ना दे चिट्टे वाल ने ना उन्हें सारे मेहंदी ला दो। सुन्नत नबी की किसने रोका है? लेकिन उसी स्टाइल में मेहंदी निकालिए जैसे पूरी दुनिया कर रही है, तो फिर वो तेरे नबी की तहजीब और सुन्नत नहीं है। हाँ हाँ, अगर आपने गज वज के ही आना है, अल हज्जु व सच, हज है ही गजन वजन का नाम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तू हकीकत के तराने, मुहब्बत के तराने, इज्जत के तराने गा, लेकिन गज वज के किदा आउण डिया। मैं पूछे जी ये की कहण डे हो? कहते जी डगा। मैं कहा जी डगा एवं तो नहीं वज जाता, डगे के पिछे कोई थीम तो होंदा ही है ना, कोई टून होंदी है। कहते जी असी पहले मुंडे वालों जाके कहीदा देनी है कि नहीं, देनी है कि नहीं। फिर कुड़ी वालों भी वेलन लैनी, फिर कहते निंदनी निंदनी निंदनी, नाज विखाईदा। फिर कुड़ी वालों कहते लैके जानी लैके जानी लैके जानी, निंदनी, देनी है कि नहीं। इसी पे मैंने कहा वो जो पीछे कर रहा होता है वो क्या कहता है? कहता जी ये कहन दिया होंदा तेनू लाड़ा किन्ने बनाया, भूत नहीं दिया। मैं पहले नहीं मानता था, मैंने कहा झूठ है। जब इंडिया ने बकायदा इस पे जो है पिक्चराइज करके गाना फिल्मा के दुनिया में लॉन्च किया, हजरात पैसे दे रहा है, वेल दे रहा है, ये जो आ रहा है भूतना है, ये भूतनी का है। अम्मा भूतनी है, अब्बा भूत है, जिनके घर जा रहे हैं वो भूत हैं। नहीं बस दे घर बदनिश्तां दे तो भूतां दे किथों वसने, इंसानों के घर बसते हैं। मैं शकरगढ़ आपकी इसी सड़क से गुजरा, जल्दी थी, शकरगढ़ से भी मैंने आगे जाना था, तो वो बाजार बंद थे, वहाँ कोई शादी हाल था, उत्थे एक वखरा ही डगा लगन डिया। रास्ता बंद था, मैं उतर गया। मैंने उसे कहा एक ही कहन डिया, मुट्ठी में 500 दिया। कहता जी 2 मिनट वेट करो, इनू जरा टोर लवा सी ऑफ करके थानू। वो जो डगा था बाद में मैंने पूछा, कहता जी एंड ते असी गज वज के लई, गज वज के लई। क्या ये नबी के उम्मती हैं जिनको देख के शर्माए यहूद व हुनूद? वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जलसे सीरतुन नबी के करवाने, बात उसवे की करनी, महफिल में महबूब की नाते पढ़नी, बात दीन इस्लाम की करनी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अंगूठे चूमना और मोहब्बतें जो हैं वो पेश करनी। लेकिन जब बात आए खुशी की तो फिर टोटल के टोटल हिंदू, उससे बढ़ करके हट करके कोई बात नहीं बनती। हजरात आइए लौटिए, सिर्फ जो है डाइस पे चढ़ के खुतबा निकाह 6 कलमे के चक्कर में पढ़ करके मत करें, ज़्यादती मत करें। थोड़ी सी भी ज़्यादती करेंगे तो ज़्यादती होगी। आइए अपने घरों के अंदर अगर सुकून चाहते हैं तो अपने आप को रब से भी जोड़ें। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं, और उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। लिहाजा किसी को मौका मत दें। अपने आप को, अपनी अना को, अपने गर्दन और गर्दन के सरिये को ख़त्म करके अज भावें दूर भी दे भेज छड़िया जे ना, तो महीनों तो नहीं जो बुला रहे तो साल हो गए। राती 2 बजे भी इतों फारग होवो फोन करके ना, एक दफ़ा टेंशन तो होएगी, 2 बजे फोन, वो भी साढ़े जवाई दा है, अल्लाह खैर करे, तो कह देना जी
میں اپنی کردہ نہ کردہ تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، ایکسکیوز کرتا ہوں، اور میں سلام لینے میں پہل کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر کو برباد نہیں دیکھنا چاہتا، آپ میرا ساتھ دیجئے، اور اگر ایسا کوئی فون آ جائے تو اس کا ساتھ نبھانا ہے انشاءاللہ۔ شیطان کو تب تکلیف ہوتی ہے جب گھر والے مل جاتے ہیں، اور تب اس کو خوشی ہوتی ہے جب دونوں آپس میں روٹھ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے اس شعر کے ساتھ کہ بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور بیویوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں شوہر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے، آئیے دونوں اچھے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔